Good evening, Mr. A.K. Mishra, sir, founder, chairperson, and managing director of Chanakya IAS Academy. A hearty welcome to Mr. Imran Zaid, the shining superstar of Ab Dilli Dur Nahi, and our esteemed media journalist fraternity. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. On behalf of Chanakya IAS Academy Chandigarh branch, I take this opportunity to throw an insight on the journey of our growth and success of the academy. The inception of Chanakya IAS Academy goes back to 1993. We have put in more than 30 years in nurturing the leaders of tomorrow. Our success guru, Mr. A.K. Mishra, has worked hard to create a pan-India presence by reaching different regions and opening branches in more than 12 states. I feel so overwhelmed and honored sharing this achievement of Mishra sir in front of the respected media persons. Mishra sir, who himself comes from a small town Hazaribagh, not only helped thousands of aspiring UPSC candidates to achieve their dreams, but also groomed them to become responsible citizens of our country and emerge ahead with pride to merge with the developed world. Today we all have gathered here to unfold the trailer of the movie Ab Dilli Dur Nahi, specially for our media friends. And to do this honor, Mishra sir, along with Mr. Imran, the superstar, has come physically to Chandigarh, and I think they deserve a big hand for this. I'm not going to share the success story of the movie, nor will I disclose the emotional attachment of Mishra sir with the movie. Mishra sir and Mr. Imran will very soon interact with you all and talk about their own experiences. And on this note, I would like to invite Mr. A.K. Mishra sir and Mr. Imran to come forward for the ribbon cutting ceremony. And I'm sure this moment is much awaited by our journalist friends. So let's all together view the curtain raiser of the movie Ab Dilli Dur Nahi. Thank you so much, sir. Thank you, Imran. Together to watch this film on the silver screen on 12th of May 2023. And I extend a warm invitation to all of you sitting here to please avail this opportunity of special screening of the film on 12th of May. And very soon I am going to reach out to everyone and tell you exactly the place where we are having. Most probably either we'll have it in Sir in Nilanti Mall or maybe Cinepolis. Not very sure, but I'm going to inform all of you. And we cordially invite all of you, and now I move on to Sir and request Sir and Imran to have an interactive session with the media. Okay. So let's have a glimpse of the trailer of the movie. We are looking forward for the movie. So now I would request Sir that both of you can take on the interactive session. सर ये पूछ रहे हैं मैडम श्रुति कब अच्छा ये तो गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको। मैं A.K. मिश्रा, चाणक्य IAS अकेडमी का फाउंडर एंड चेयरमैन। 1993 में इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एस्टैब्लिश किया था दिल्ली में, और ये 30 साल का सफर है। आज 15 स्टेट्स में चाणक्य IAS अकेडमी की 25 ब्रांचेस चलते हैं। ये 30 साल के सफर में यूपीएससी के द्वारा 5000 से ज्यादा सिलेक्शन हमने सिविल सर्विसेज में अभी तक लिया है। ये सफर 30 साल का अपने आप में एक बहुत ही एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। जैसा कि गुरदीप मैडम ने बताया कि मेरी भी शुरुआत एक छोटे से गाँव से हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बिहार होता था, झारखंड वहां से शुरू हुई, और वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर, और फिर ये निर्णय कि मैं खुद ना बनकर के लोगों को आईएएस बनाऊंगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, बिजनेस का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, तो नेचुरली ये अपने आप में सफर जो है काफी अप्स एंड डाउन से भरा था। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जो मैंने अपने अंदर इसमें जो है कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस,
ये मैंने अपने स्टूडेंट के साथ भी बांटा। और ये पूरे सफर में हजारों ऐसे व्यक्ति व स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए, उनके सबकी कहानी में बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियां थी। हमने उनके साथ साझा किया, मिला। गांव-गांव से गरीब बच्चे जो रिमोट एरिया से भी आए, उनको भी आईएएस बनाया। जो लोग अमीर परिवार से थे, उनके लिए भी चुनौती कोई कम नहीं थी, क्योंकि आईएएस जैसा टॉप एग्जामिनेशन है। तो नेचुरली ये एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा टेस्ट है, चुनौती है। और ये संघर्ष की कहानी सिर्फ आईएएस के लिए नहीं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अव्वल कर चुका है या करना चाहता है कुछ अलग हट करके, तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये फेलियर्स वर्क की जो सक्सेस है फेलियर का, मैं हमेशा इस बात को बड़ा डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता से हमेशा सबको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। ये लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसकी जो लास्ट लाइन्स हैं इस फिल्म के भाव को प्रेजेंट करती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश की और स्टूडेंट के साथ किया। रही इस फिल्म के बाद, इसकी शुरुआत 2017 से हुई। 2017 में 2017 में इमरान के एक प्ले जो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की जो क्लब है चाणक्यपुरी में, वहां इनका स्टेज शो था, प्ले था, बहस वर्कशॉप भी थे। उसमें भी इसी प्रकार की एक स्टूडेंट की कहानी ली गई थी कि कैसे गरीब परिवार से आकर के वो आईएएस बनता है, क्या करता है। तो वहां इस कहानी के बाद तुरंत हमारी आपस में बैठक हुई। मैंने इमरान से और साथ साथ में महेश भाट साहब के साथ बातचीत की। हमने कहा कि जो हम स्टेज के माध्यम से प्ले में कुछ हजारों को दिखा पाएंगे, इसकी जरूरत है इसको फिल्म में लाया जाए, तो करोड़ों लोग इससे बेनिफिट होंगे। फिर यही हमारे अपने, मैंने कहा इसमें अपनी साझेदारी करने के लिए, अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभवों को बांटने के लिए मैं तैयार हूं, जिसमें एक कहानी के अंदर कई लोगों के संघर्ष की कहानी को पिरोया जा सकता है। तो वहां से फिल्म क्या शुरुआत हुई। फिर इनके जो प्रोड्यूसर हैं, जो आपके चंडीगढ़ के ही हैं, बहुत ही डायनेमिक यंग मैन है, विनय भारद्वाज, उनसे मुलाकात की गई कि हम एक फिल्म ऐसा बनाना चाहते हैं। वो कई फिल्में बना चुके हैं और चंडीगढ़ के आप सबके लिए आज एक बहुत नाज के रूप में, शान के रूप में उभर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई। इनकी दोस्ती भी आपस में इमरान के साथ चंडीगढ़ में ही हुई, क्योंकि काफी लंबे समय तक इमरान यहीं थे। फिर इनके साथ बैठ करके हमने आपस में शेयर करना शुरू किया, और इस कहानी को एक बहुत अच्छा रूप जो दिया गया, उसके अंदर हजारों लोगों की कहानी को पिरोया गया। इंस्पिरेशन के तौर पर एक कहानी ली गई जो है गोविंद जायसवाल जी के साथ एक कहानी, जो रियल स्टोरी है। एक बिहार से एक शिक्षा पुलर के बेटा कैसे आईएएस बनता है उसकी, पर उनके लाइफ में लव स्टोरी नहीं थी, तो हमने फिर किसी और के लव स्टोरी को इसमें इंक्लूड किया ताकि ये सिनेमैटिक्स इसका वैल्यू बने। और बात क्या है, गाना जो भी नोटियाल जी का लिया गया, और इस प्रकार से एक बहुत प्रोफेशनल टच देने के लिए। और इसमें गेस्ट अपीयरेंस के रूप में वी आर लकी टू गेट महेश भट्ट साहब, जो एज एंकर टीवी आते हैं, और साथ के साथ में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। तो ये फिल्म ओवरऑल एक प्रोफेशनल तरीके से अच्छे लो बजट पे बनाई गई। सारी शूटिंग दिल्ली में हुई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान एज एन एक्टर इन्होंने बहुत मेहनत की, जाकर के हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस अटेंड किए, कैंडिडेट से मिले, इंटरव्यू अटेंड किया, मुझे साथ सेवरल राउंड मुझसे डिस्कशन हुआ कि इसमें ये भाव होना चाहिए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो एज एन एक्टर जो है उतर करके बात होनी चाहिए, किया गया। और साथ साथ में जो उनके प्रोड्यूसर है विनय भारद्वाज जी और संजय मवार, दो प्रोड्यूसर साथ में, उससे बात लगातार होती रहे, और इस प्रकार से फिल्म को एक दिया गया। मेरी बात इसमें इसलिए जुड़ा है कि जो मोटिवेशनल सेमिनार के माध्यम से मैं कुछ हजारों लोगों तक पहुंच पाता था ऑडिटोरियम में, मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें चाणक्य अकेडमी को नॉलेज पार्टनर बनाया जाए। तो ये जो मोटिवेशनल टॉक्स और थॉट्स देता हूं, जो अभी हजारों में जाता है, सिनेमा के माध्यम से करोड़ों को पास पहुंच सकता है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म उस तरह से सही उतर कर आया है, आज आपके सामने है, जिसमें मैं इसका प्रेजेंटर हूँ। इट इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड चाणक्य आईएएस अकेडमी इज ए नॉलेज पार्टनर ऑफ द फिल्म। इसमें जो आपकी एक्ट्रेस हैं वो पंजाबी फिल्मों में ऑलरेडी आ रही हैं, श्रुति सोडी, और साउथ की फिल्म में भी बहुत काम कर रही है, उनको भी आना था, लेकिन कुछ एंगेजमेंट के कारण से लास्ट मोमेंट में वो चेंज हुआ प्रोग्राम। चूंकि इसे प्रोग्राम काफी जगह चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिल्म चल गई तो दोबारा फिर से मौका होगा जिसमें क्रू
और ज़्यादा लोग आएंगे, प्रोड्यूसर भी आएंगे, एक्ट्रेस भी आएंगे और भी लोग यहाँ आपके साथ मिलने के रूबरू के लिए जरूर आएंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि इस फिल्म की, जिसमें चाणक्य आईएएस अकेडमी एजुकेशन के साथ साथ इसने डिसीजन लिया कि इसी मैसेज को जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, जो इसको आप जो शहरों तक नहीं जा सकते, उनको भी कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो सेमिनार के माध्यम पे तो मैं शहरों में कर ही रहा था, यूनिवर्सिटी में कर रहा था, आज भी करता रहूंगा, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से पॉसिबल हुआ और फिर बाद में ओटीटी चैनल पे भी ये फिल्म जाएगी कि नाउ अब करोड़ों बच्चे, यूथ और जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच कि हमारे मैसेज को लोगों तक पहुँचाएं, इस फिल्म के बारे में समझाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए इंस्पायर करें। अब हम चाहेंगे कि इमरान अपनी बातें इस पर रखें। हेलो एवरीवन। तो जैसा सर ने बताया कि चंडीगढ़ में मेरा तो बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ आपने एक बहुत अच्छा वक्त बिताया, ज़िंदगी को बहुत अच्छे लम्हे बिताए, जहाँ ये सपना देखा कि एक्टर बनना चाहता हूँ, थिएटर करना चाहता हूँ। एक बहुत रिनाउंड थिएटर एक्टर डायरेक्टर थे ज्ञानेंद्र सर यहाँ चंडीगढ़ में, जो ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी जुड़े हुए थे। तो उनके साथ मुझे पहली बार मौका मिला कि थिएटर और एक्टिंग की चीज़ों को करने का। तो वहाँ से एक शौक शुरू हुआ और जब हम यहाँ अलग अलग थिएटर्स में, पिकैडली में, नीलम में सिनेमा देखते थे, तब ऐसा नहीं अंदाज़ा था कि कभी हम भी वापस आएंगे अपनी एक फिल्म को करके। और जब आप कुछ ड्रीम्स देखते हैं, जैसे हमारी फिल्म का टैगलाइन है डेयर टू ड्रीम, आप सोचते हैं, आप उसके पीछे लग जाते हैं, आपके में जज्बा होता है, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लेते हैं। देर सवेर ही सही, मगर चीज़ें पहुंच जाती हैं। हमारा ये जो फिल्म हमने इस सब्जेक्ट को लिया, हम चाहते थे कि समाज का आईना सिनेमा को कहा जाता है। हम लोग बचपन से जब भी मैं चूँकि बिहार से आता हूँ, तो बचपन में देखता था जब भी 15 अगस्त होता था, 26 जनवरी होती थी, गाना हम ज़रूर सुनते थे। सुबह उठते ही सारे कॉलेज स्कूल में मेरे वतन के लोग ज़रा आँख में भर लो पानी। तो सिनेमा का और गानों का जो हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगा कि अगर हम एक सिनेमा के सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेना चाहिए जिसका शायद कुछ हमको पीच नहीं कर रहे, लोगों को प्रवचन नहीं दे रहे, मगर उसका कहीं ना कहीं हम इंस्पायर कर सकते हो। गोविंद जायसवाल जिनकी ज़िंदगी से लिया, उनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। मतलब एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनके जो फादर थे वो रिक्शा चलाते थे, वो पढ़ाई में बहुत तेज थे, मगर जब भी वो स्कूल जाते थे उससे कोई बात नहीं करता था, उनके साथ कोई खेलता नहीं था। तो वो मलाल उनको हमेशा रहता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर किसी दोस्त के घर पे गए जो बहुत अच्छे फैमिली से था, तो उसके फादर ने उसको धक्के देकर निकाल दिया था। तो सवाल उनके जहन में था। एक दिन उन्होंने टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मतलब हम पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, हम शरारत नहीं करते हैं, हमारा नाम कहीं नहीं आता है, तो हमसे कोई बात क्यों नहीं करता है, हमारे साथ खेलता क्यों नहीं है। तो टीचर ने बोला कि तुमको पता है ना तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कोई नहीं चाहता है कि एक रिक्शे वाले के बेटे के साथ कोई बात करे, खेले, दोस्ती रखे। तो इन्होंने पूछा कि सर मतलब तो बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। तो ऐसे हंसते हुए टीचर ने कह दिया कि तुम IAS बन जाओ तो बैकग्राउंड कोई इशू नहीं रहता है। तो उस 5वीं की घटना से उनके जहन में पहुंच गया था कि मुझे IAS बनना है। और फिर आगे भी इनकी बहुत स्ट्रगल रही जर्नी। ट्यूशन पढ़ाया, जूते की दुकान में काम किया और अपनी पहले अटेम्प्ट में दिल्ली पहुंचकर IAS के एग्ज़ाम को क्लियर किया और हिंदी मीडियम में पहले टॉपर रहे वो। जब इंटरव्यू को कॉल आया तो उसके 10 दिन पहले इनके पास फ़ोन आया घर से कि तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, वो पानी में रोटी डाल करके खा रहे हैं और सारा गांव वाला कह रहा कि यहाँ बाप मर रहा हो, बेटा दिल्ली में ऐश कर रहा है। लेकिन हम कर क्या सकते थे, मतलब अगर हम कुछ कर सकते तो हम IAS बनने के बाद ही कर सकते थे। और अपने दोस्त को इन्होंने कहा, मुझे बोला कि मैं बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, मगर मैंने उसको कहा कि अगर मेरे फादर को कुछ हो जाता है ना तो मुझे बताना मत, क्योंकि फिर हमको गाँव जाना पड़ेगा और हम कभी IAS नहीं बन पाएंगे। तो उस सिचुएशन को फेस करते हुए वो पहुंचे और उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया। मैंने पूछा उनसे कि इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा कि बहुत होता, तो उन्होंने पूछा कि जो मैम इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने हमसे पूछा कि गोविंद तुम्हारा इंटरव्यू इतना अच्छा जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो बोले कि बड़ा एक निगेटिव सा सवाल था, 10 सेकंड तक तो हम ब्लैंक रहे थे। मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि मैम जब आप अपने घर से निकलते हैं कि व्हीकल ड्राइव करते हुए तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हो। आप ये थोड़ी सोचते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया कि मैं अपोलो जाऊंगा, KF जाऊंगा, तो मैं क्यों मान लूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी रही उनके अंदर। मैंने पूछा कि
सर क्या लगा आपको कल को जब आप IAS बन जाएंगे, क्या ऐसी पहली चीज़ अपनी लाइफ में आप चाहेंगे? तो बड़ी सादगी से बोले कि हमको लगता था कि जब हम घर जाएं तो मेरे डाइनिंग टेबल पे फ्रूट का बास्केट हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 17 साल IAS के बाद भी अभी भी उनके में वो सादगी और सिंप्लिसिटी महसूस करते हैं। तो ये बेसिक क्रक्स हमने वहाँ से लिया। और एक फिक्शनल स्टोरी है जो अभय शुक्ला की है, जो बिहार से आता है और उसको ये पता है कि मुझे अपने परिवार को गरीबी से अगर छुटकारा दिलवाना है तो मैं IAS बनकर ही दिला सकता हूँ। तो ये बेसिक कहानी है। और सर से बहुत हेल्प मिला हमें, चाणक्य एकेडमी में अलग अलग स्टूडेंट से मिले, हमने क्लासेस अटेंड की, उन अफसरों से मिले जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी के साथ अपने को कामयाब बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट लोग कनेक्ट करेंगे हमारी इस फिल्म से खुद को।